Hello students, myself Rakesh Misra. This is part 4 video of the Our Environment chapter, and this is the revisional video for class 10th. As you all know, overall syllabus that may assist as a final examination, as a board examination, is actually over. Only one video, only one chapter for the natural resource is still remain, and that will actually begin after the whole revision of the different kinds of lesson, because that lesson will not assist for the final examination, for the board examination. So their relevant is to only for the assessment, for the home examination. In this video lecture I will describe you the question number 28 onward. In previous 3 video lecture you have learned the question number 1 to 10 from part 1, 11 to 20 from part 2, and 21 to 27 part 3. This is the fourth video of our environment revision, and I here uh, help you to thoroughly revise the important key concept regarding the our environment chapter. In previous few video lecture you have learned the uh, throughout the whole chapter I have taken the important question in form of MCQs only, but from this question, from this video you will learn the MCQs along with assertion and region type. And after that video means after the video number 5, that is after video number 4, you will learn the fill in the blanks and true false question with the deep explanation. As like the previous video lecture you have learned the one question I have almost taken about 5 to 7 minutes in order to explain them thoroughly, in order to clear your all doubt regarding that particular question. So that question may ask as in form of long and short type question, which later I will bring you. But it's time to clear your concept from the MCQs, assertion, region, fill in the blanks, true false, that is concept based question. Because for the long and short type there is no any concept. If you have little idea then you can write the important concepts. Now back to the question number 28, that is little MCQs and then the assertion and region. Now the question number 28 onward, 28 onward, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 28 ऑनवर्ड. प्रीवियस वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ा? प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आप 27 का एक्सप्लेनेशन पढ़ा था. इससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे. बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स करके इसका आंसर भी बताए थे. बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी वेट कर रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा. ठीक है, तो इसका तो आंसर मैंने बता दिया था कि 4000, और लास्ट वीडियो लेक्चर में इसको मैंने न्यूमेरिकल भी लगाया था. क्वेश्चन को भी मैंने बताया था कि कैसे ये लगेगा. इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा लिंडेमान 10% लॉ. लिंडेमान 10% लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमेशा प्रोड्यूसर टू टॉप लेवल कंज्यूमर तक ही फ्लो होता है. हमेशा प्रोड्यूसर टू टॉप लेवल कंज्यूमर तक ही फ्लो होता है, उल्टा नहीं जाता है. ठीक है, तो ये सब पिछले वीडियो में हो गया था. इस वीडियो में आपको 28 ऑनवर्ड क्वेश्चन रिवाइज कराने हैं, और इट में बी द लास्ट वीडियो फॉर द रिवीजन ऑफ आवर एनवायरनमेंट चैप्टर. ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अभी आपको जानना है. क्वेश्चन नंबर 28, what will happen if all the deers are killed in the given food chain. ठीक है, कह रहा है कि अगर सभी जो डियर हैं, जितने भी हिरन हैं, वो सब मार दिए जाएं, किल्ड हो जाएं, तो फूड चेन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. ठीक है, तो अभी आपको क्या बताया था लास्ट वीडियो लेक्चर में. फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल को खाता कौन है? सेकेंड ट्रॉपिक लेवल. सेकेंड ट्रॉपिक लेवल को कौन खाता है? थर्ड ट्रॉपिक लेवल. ठीक है, यहाँ पे ग्रास है, डियर है, लायन है, तो इसमें कौन फील होगा? ग्रास फील होगा. इसमें कौन फील होगा? डियर फील होगा. इसमें कौन फील होगा? लायन फील होगा. आपको पता है कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में सभी के सभी प्रोड्यूसर होते हैं. सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में सभी हर्बीवर्स होते हैं. थर्ड ट्रॉपिक लेवल के बाद से सब के सब कार्निवर्स हो जाते हैं. तो ये तो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये तो अंडरस्टूड है, जो लास्ट वीडियो लेक्चर में भी बताया था. अब ये पूछ रहा है कि डियर को अगर ख़त्म कर दें, डियर को ख़त्म कर दें, तो इफ़ेक्ट तो इस पर भी पड़ेगा और इफ़ेक्ट इस पर भी पड़ेगा. इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा? ये डिक्रीज होंगे, ये कम होंगे. कम क्यों होंगे? क्योंकि ये मरेंगे भाई, ये नहीं खाएंगे, डियर को नहीं पाएंगे, तो क्या होगा? ये लगेंगे किल होने, मरने. ठीक है, क्योंकि इस पे डिपेंड है. और साथ साथ जब डियर्स को किल कर देंगे तो ग्रास बढ़ना शुरू हो जाएगा, घासें जो है बढ़नी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इसको खाने वाले तो डियर हैं, डियर नहीं रहेंगे.
तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जानना कि ये दोनों पे इफेक्ट पड़ेगा, इस पे पड़ेगा इसका पॉजिटिव इफेक्ट और इस पे पड़ेगा इसका नेगेटिव इफेक्ट। यानी कि व्हेन द ऑल डियर्स इन अ इकोसिस्टम गेट डाइड, then the every organism that belong to third trophic level and deer dependent, it means the carnivores like lion, tiger, wolf, immediately or after some time get die, after some time get die. Why? Because of having starvation, because of having starvation, long time of hungry known as starvation। ठीक है, तो ये ऑप्शन में क्या दिया है, द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास डिक्रीज। पॉपुलेशन ऑफ ग्रास तो पॉजिटिव होगा ना, बढ़ेगा, तो ये आंसर नहीं है। द पॉपुलेशन ऑफ लायन इंक्रीज, लायन का पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगा भाई, लायन का पॉपुलेशन तो घटेगा ना, माइनस लगा दिया मैंने, तो ये भी गड़बड़ है। द पॉपुलेशन ऑफ लायन रिमेन अनचेंज, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये भी प्रॉब्लम नहीं है कोई। ठीक है, ये भी सॉल्यूशन नहीं है। द पॉपुलेशन ऑफ लायन डिक्रीज एंड ग्रास इंक्रीज, जी ये सही है। यहाँ पे लायन का पॉपुलेशन घटेगा और ग्रास का पॉपुलेशन बढ़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई प्रॉब्लम अगर है इसके बाद तो आप इमीडिएटली जो है कमेंट बॉक्स में उसको आप ज़रूर बताएं कि सर ये चीज़ें नहीं समझ में। आई होप जितना इजीली मैंने बताया इसमें समझ में आ गया होगा। कोई अगर इसके बाद भी प्रॉब्लम है तो आप उसके बाद बताएं। ठीक है, तो डियर के किल होने से लायन जो है डिक्रीज होंगे और डियर जिसको खा रहा है, जिसको घटा रहा है, वो इंक्रीज होंगे, यानी कि ये बढ़ेंगे। कौन बढ़ेगा, बढ़ेगा तो ग्रास बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि आफ्टर द डिक्रीज ऑफ द आफ्टर द किलिंग ऑफ सेकेंड ट्रॉपिक लेवल एनिमल्स, there will be both affected, either the third trophic level or first trophic level। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट 29 पे। 29 पे आते हैं, 29 पे। ठीक है, 29 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द टू इन द फॉलोइंग सेट्स बिलोंग टू द सेम ट्रॉपिक लेवल। कह रहा है कौन सा सेट जो है एक ही ट्रॉपिक लेवल का है। ठीक है, तो फिर से एक बार दोबारा तिबारा जितना भी आपको समझ में आए, जैसे भी समझ में आए मैं बताता रहूँगा। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में कौन आते हैं भाई, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में आते हैं प्रोड्यूसर। सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में कौन आते हैं, हर्बीवर्स। थर्ड ट्रॉपिक लेवल में कार्निवर्स, यानी इसमें आते हैं प्लांट्स, इसमें आते हैं प्लांट्स को खाने वाले, और इसमें आते हैं एनिमल्स को खाने वाले, कार्निवर्स। तो इसमें से आपको छांटना है कि कौन इसमें से एक ही ट्रॉपिक लेवल से बिलोंग करते हैं। ये पहला क्या दिया है, पहला दिया है ग्रास, ग्रासोपर। तो ग्रास तो प्रोड्यूसर में चला जाएगा, बट ग्रासोपर जो है हर्बीवर्स में आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट की मैं बात कर दूँ। गोट एंड स्पाइडर, स्पाइडर जो है इंसेक्ट को खाता है। ठीक है, स्पाइडर अगर इंसेक्ट को खाएगा तो प्लेस कहाँ होगा, थर्ड ट्रॉपिक लेवल में प्लेस होगा। और गोट जो है ये खाता है प्लांट्स को, तो ये प्लेस होगा कहाँ पे, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में। यानी ये दोनों अलग अलग ट्रॉपिक लेवल में फील्ड होंगे, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट की मैं बात कर दूँ। नेक्स्ट क्या है, हॉक एंड रैट। हॉक मीन्स क्या होता है, चील। ठीक है, तो ये हॉक जो है सेकेंड ट्रॉपिक लेवल ऑर्गेनिजम्स को खाता है। ठीक है, हॉक जो है सेकेंड ट्रॉपिक लेवल को खाता है तो थर्ड ट्रॉपिक लेवल में हो जाएगा। और रैट सीड वगैरह खाता है तो ये सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में हो जाएगा। यानी ये दोनों भी एक ट्रॉपिक लेवल में नहीं जाएंगे, तो ये भी गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में आ जाए, नेक्स्ट क्या दिया है, फ्रॉग एंड लिजार्ड। फ्रॉग किसको खाता है, इंसेक्ट को, और लिजार्ड किसको खाता है, इंसेक्ट को। तो ये दोनों जो है इकट्ठे कहाँ चले जाएंगे, ये दोनों चले जाएंगे थर्ड ट्रॉपिक लेवल में। ठीक है, क्योंकि इंसेक्ट ग्रास खाता है तो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल हो जाएगा। इंसेक्ट अगर ग्रास खाएगा तो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में हो जाएगा, और ये अगर इंसेक्ट को खाएंगे तो थर्ड ट्रॉपिक लेवल में हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी। ठीक है, बिलोंग टू द सेम ट्रॉपिक लेवल, तो क्या हो जाएगा, डी। फ्रॉग एंड लिजार्ड बिलोंग टू द सेम ट्रॉपिक लेवल। कहीं कहीं आपको दिमाग लगाना है, कहीं कहीं आपको थोड़ा सा समझना है। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग भी लगाना और समझना भी है। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा रीजनिंग टाइप का होता है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपके ऑप्शन दोनों सही हो सकते हैं या एक रीजन सही होता है, और कभी कभी असर्शन गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, चलो आते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, थोड़ा सा इसको मैं मैग्नीफाई कर दूँ ताकि और चीज़ें क्लियर हो जाए, आसान हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा मैग्नीफाई कर दे रहा हूँ और आपको पूछ रहा हूँ। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द असर्शन रीजन have been put forward।
रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम फ्रॉम द फॉलोइंग। कह रहा है कि नीचे जो असर्सन रीजन दिया हुआ है, ठीक है, उसमें से अच्छे से उसको पढ़ें और उसमें से करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर्म को छाटें। ठीक है, अगर ऑप्शन ए तब होगा जब आपका बोथ असर्सन एंड रीजन जो है करेक्ट होगा। ठीक है, व्हेन द बोथ असर्सन एंड रीजन्स आर करेक्ट एंड द रीजन्स इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्सन। दोनों असर्सन जो है, असर्सन और रीजन दोनों सही हो, और रीजन जो है असर्सन का करेक्ट स्टेटमेंट हो, यानी कि एक्सप्लेनेशन। देखो, एक होता है असर्सन और दूसरा होता है रीजन। असर्सन एक स्टेटमेंट होता है और रीजन उसका एक्सप्लेनेशन होता है। तो ए के अकॉर्डिंग क्या करना है, ए के अकॉर्डिंग करना है कि असर्सन सही है, रीजन भी सही है, और रीजन जो असर्सन का है, यानी कि रीजन जो एक्सप्लेनेशन है असर्सन का, वो सही है। तो आपको ऑप्शन ए पुट करना है। बी क्या दिया है, द असर्सन एंड रीजन्स आर करेक्ट बट द रीजन्स इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्सन। इसमें भी सेकेंड ऑप्शन यानी बी तब चूज करना है जब आपका असर्सन और रीजन दोनों करेक्ट हो, लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना हो, वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ना हो। ठीक है, थर्ड क्या पूछ रहा है, असर्सन इज ट्रू बट द रीजन्स इज फॉल्स। कह रहा है कि असर्सन ट्रू हो और लेकिन रीजन जो है गड़बड़ हो, तो ये एक्सप्लेनेशन भी गड़बड़ होगा, सीधी सी बात है। स्टेटमेंट्स ऑफ द असर्सन इज फॉल्स बट द रीजन्स इज ट्रू, यानी थर्ड में क्या कह रहा है, थर्ड में कह रहा है कि आपका असर्सन्स जो है, असर्सन जो है वो सही हो लेकिन असर्सन जो है गड़बड़ हो, लेकिन रीजन उसका जो है सही हो। तो कुल मिला के क्या कह रहा है कि आपके पास दो चीज़ें हैं, एक असर्सन है और एक रीज़न है। पहले में क्या दिया है, असर्सन रीजन दोनों सही है, रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सेकेंड क्या कह रहा है, असर्सन रीजन दोनों सही है लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं। ठीक है, थर्ड में क्या कह रहा है कि असर्सन जो है ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है, और फोर्थ में क्या कह रहा है कि असर्सन जो है फॉल्स है और रीजन क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो ये आपके चारों ऑप्शन छाटने हैं। अब थोड़ा सा असर्सन और रीजन को भी चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, चलो क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है असर्सन, वेजिटेरियन फूड हैबिट इज मोर बेनिफिशियल टू ऑर्गेनिजम्स। कह रहा है कि वेजिटेरियन फूड हैबिट्स जो है वो मोर बेनिफिशियल है। ठीक है, बेनिफिशियल जो है वो ऑर्गेनिजम्स के लिए, ये तो सही बात है। ओनली 10% एनर्जी इज अवेलेबल एज फूड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट। तो ये एक्सप्लेनेशन किस बेस पे हम दे सकते हैं भाई, फूड जो है सही है भाई, वेजिटेरियन फूड सही है, कुछ लोग कहेंगे नॉन वेजिटेरियन सही है, लेकिन ये रीजन के साथ दिया है कि ओनली 10% एनर्जी लेवल। तो जो प्रोड्यूसर को खाएंगे, डायरेक्ट जो प्रोड्यूसर को खाएंगे, मान लो ह्यूमन बीइंग खा रहा है तो ये इस समय वेजिटेरियन होगा। ठीक है, और अगर कोई ह्यूमन बीइंग जो है नॉनवेज खा रहा है, नॉनवेज खा रहा है यानी हर्बीवर्स को खा रहा है, तो इसको सपोज दैट इसको मिल रहा है 100 जूल एनर्जी, तो इसको मिलेगा 10 जूल और इसको मिलेगा 1 जूल। तो जो हर्बीवर्स खाएगा, ये कार्निवर्स यानी कि जो नॉन वेजिटेरियन है, उसको 10 जूल मिलेगा, 1 जूल मिलेगा, और जो हर्बीवर्स है वो 10 जूल मिलेगा। तो एक्सप्लेनेशन तो सही है, इसलिए हमको जो है वेजिटेरियन फूड आइटम जो है वो मोर बेनिफिशियल है ऑर्गेनिजम्स के लिए, इंसानों के लिए नहीं, ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो यहाँ पे हर्बीवर्स को ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, मिल भी रही है। रीजन क्या है कि 10% लॉ के अकॉर्डिंग, तो यानी कि असर्सन रीजन दोनों सही है। रीजन जो है 10% लॉ को जो बताया है वो अकॉर्डिंग टू असर्सन बिल्कुल सही है। ठीक है, ये 100% सही है। तो यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, बोथ असर्सन एंड रीजन्स आर करेक्ट एंड द रीजन्स इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्सन। ठीक है, इसको आप लिख लेंगे, असर्सन यहाँ पे दिया हुआ है। असर्सन क्या दिया हुआ है, वेजिटेरियन फूड हैबिट इज मोर बेनिफिशियल फॉर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, रीजन क्या दिया हुआ है, ओनली 10% एनर्जी ऑफ ट्रॉपिक लेवल इज, ये दोनों सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन। चलो आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स, एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इज मैक्सिमम इन केस ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट हायर ट्रॉपिक लेवल। आपको बताया गया था बायो मैग्निफिकेशन, जिसको बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। कोई भी टॉक्सिक सबस्टेंस है वो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाएगा, फिर दूसरे से तीसरे ट्रॉपिक लेवल में जाएगा, तीसरे से चौथे ट्रॉपिक लेवल में जाएगा, यानी जो हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल वाला है उसको सबसे ज़्यादा टॉक्सिसिटी का सामना करना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस है
बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का। तो स्टेटमेंट तो सही है, असर्शन तो सही है। रीजन क्या दिया है, फूड चेन नॉर्मली डू नॉट गो बियॉन्ड 3 to 4 ट्रॉपिक लेवल। तो ये एक्सप्लेनेशन गड़बड़ है। फूड चेन जो है 4 ट्रॉपिक लेवल तक भी जा सकता है। जैसे कोई पॉन्ड इकोसिस्टम है, तो ये कोई फाइटोप्लैंक्टॉन्स है, प्रोड्यूसर है, इसको कोई जू प्लैंक्टॉन्स खा रहा है, जू प्लैंक्टॉन कोई स्मॉल फिश खा रहा है, स्मॉल फिश को कोई लार्ज फिश खा रहा है, लार्ज फिश को कोई एक्वाटिक बर्ड्स जैसे एग्रेट क्रेन्स वगैरह खा रहा है, स्वान खा रहा है। तो ये 5 ट्रॉपिक लेवल तक चला गया। तो ये जो है असर्शन और रीजन, ठीक है, रीजन तो सही है, ये हो सकता है नॉर्मली डू नॉट गो, ये 3 से 4 लेवल तक भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर इससे कम भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसका करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा फूड चेन एक्सपेंड होगा उतना ही ज़्यादा टॉक्सिसिटी बढ़ेगी। तो स्टेटमेंट ये भी सही है, फूड चेन नॉर्मली जो इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हायर ट्रॉपिक लेवल जो है, हायर ट्रॉपिक लेवल का ऑर्गेनिज्म जो है इसको गेन नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये इसके अकॉर्डिंग सही नहीं है, यानी असर्शन सही है 1, लेकिन रीजन गड़बड़ है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। असर्शन इज राइट बट द रीजन एंड देयर एक्सप्लेनेशन इज रॉन्ग। चलो आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट पूछ रहा है ओजोन लेयर इज गेटिंग डिप्लेटेड अपर एटमॉस्फेयर विच काज ऑफ कंसर्न। ये तो सही है, ओजोन लेयर डे बाय डे जो है ये डिप्लेट हो रहा है। CFC रिएक्ट विथ ओजोन एंड ब्रेक, ये भी सही है, उसका एक्सप्लेनेशन भी है। ऊपर मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने इसको अच्छे से बताया था कि जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है CFCl3, ये क्या बनाता है, क्लोरीन फ्री रेडिकल, और प्लस जो है ये क्लोरीन फ्री रेडिकल प्लस CFCl2। तो ये क्लोरीन फ्री रेडिकल रिएक्ट करता है किसके साथ, ओजोन के साथ, बार बार ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, बार बार ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा ClO प्लस O2, फिर O2 पे रिएक्ट करेगा Cl तो क्या बनाएगा, फिर बनाएगा ClO, और ये O2 पूरी तरह से बाउंड्री लाइन के बाहर कर देगा। तो ये मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बताया था, ये आपको याद भी होगा, अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड असर्शन रीजन से, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन था कि ये इसमें से असर्शन क्या और रीजन क्या। असर्शन तो सही है, लेकिन रीजन में क्या दिया है, रीजन में असर्शन से कोई मतलब नहीं है। ट्रॉपिक लेवल अगर बढ़ाएगा तो ये जो है असर्शन के अकॉर्डिंग रीजन भी हो जाएगा। और ये क्या, ओजोन लेयर डिप्लेट हो रहा है, ये तो सही है। किसकी वजह से हो रहा है, CFC की वजह से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, ये भी सही है। और ये इसका गुड एक्सप्लेनेशन है, यानी कि ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग क्या है, जब असर्शन रीजन दोनों सही है और ए जो है रीजन जो है असर्शन का एक करेक्ट जो है क्या है, एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से जानना है, समझना है और लिखना भी है कॉपी में। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है असर्शन, ऑटोट्रॉप कैन प्रोड्यूस, ठीक है, ऑटोट्रॉप कैन प्रोड्यूस फूड ऑन इट्स ओन। भाई ये तो सही है, क्या है, असर्शन जो है ये ट्रू है। रीजन क्या दिया है, ग्रीन प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब ओनली 1% ऑफ द सनलाइट दैट फॉल ऑन द लीव्स, ये रीजन भी सही है। ठीक है, कह रहा है कि सनलाइट से जो एनर्जी आती है वो सिर्फ 1% ही किसको मिल पाती है, सिर्फ 1% ही लीव्स को यानी प्लांट्स को मिल पाती है। ठीक है, और इसके बाद से 10% जो है नेक्स्ट टॉपिक लेवल में जाती है। तो ये तो गुड स्टेटमेंट है, ये सही स्टेटमेंट है, इसमें इफ बट नहीं होना चाहिए। तो ये असर्शन रीजन सही है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब चेक करेंगे, ऑटोट्रॉप कैन प्रोड्यूस फूड ऑन इट्स ओन। क्वेश्चन के हिसाब से तो असर्शन से इसका कोई मतलब, रीजन से इसका कोई मतलब नहीं है, रीजन का असर्शन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन रीजन जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट पूछ रहा है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। क्या पूछ रहा है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी डिस्चार्ज सेपरेटली। कह रहा है कि इसको जो है दोनों को अलग अलग डिस्चार्ज करना चाहिए। तो इसके हिसाब से असर्शन तो बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि जो असर्शन है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ये दोनों को अलग अलग क्यों रखना चाहिए भाई, आप बताएं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन ईजिली डिकम्पोज्ड बाई द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स while non-biodegradable substances can not easily decompose. Biodegradable substances can easily decompose while the non-biodegradable substances cannot easily decompose. So there is need to separate out them from the different kinds of
द डस्टबिन, मैंने क्या बताया था कि एक के लिए ब्लैक या ब्लू डस्टबिन होता है और एक के लिए ग्रीन डस्टबिन होता है। ग्रीन डस्टबिन में बायोडिग्रेडेबल और ब्लैक या ब्लू डस्टबिन में क्या रखते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको पॉइंट आउट क्या रखना है, यहाँ पे पॉइंट आउट रखना है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस और बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस को अलग अलग, ताकि आसानी से उसको सेपरेट आउट कर दिया सके। तो ये तो असर्शन सही है। अब रीजन चेक करते हैं, रीजन क्या है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर नॉट हार्मफुल। कह रहा है कि बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है वो हार्मफुल नहीं होते हैं। ठीक है, देखो कभी कभी बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस भी हार्मफुल हो सकते हैं, लेकिन ये जो है स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल के अकॉर्डिंग ये तो गड़बड़ है। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जो है हार्मफुल हो सकते हैं, कभी कभी उनका एक्यूमुलेशन, अगर बायो डिकम्पोजर्स इसको डिकम्पोज ना करें तो वो टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकते हैं, एक्सेस अमाउंट ऑफ नाइट्रोजिनस मटेरियल। तो ये रीजन गड़बड़ है, और रीजन जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल पहले स्टेटमेंट में पूछा है, और रीजन में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पूछा है, नॉट हार्मफुल। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी हार्मफुल होते हैं, अगर उनका डिकम्पोजिशन आसानी से ना हो तो टॉक्सिसिटी क्रिएट करेंगे। नाइट्रोजन वेस्ट जो है टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल आपके एरिया में कोई ऑर्गेनिज्म मर गया, ठीक है, और उसको डिकम्पोजर्स मिट्टी में न मिला है तो वो सड़ेगा, तो उससे निकलने वाले जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या भी उससे जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, रहना वहाँ पे दूभर हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको जानना है कि असर्शन क्या है, सही है, रीजन गड़बड़ है, और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका, इसके लिए ऑप्शन सी हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है, इसको आपको समझना है, जानना है और लिखना है। आई होप आप ये स्टेटमेंट्स और इसके पहले जितने भी असर्शन रीजन टाइप के थे वो सारा आप कर ले आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार मैं थोरोली रिवाइज कर दे रहा हूँ। असर्शन और रीजन, इस केस में जो है असर्शन और रीजन दोनों सही है। ठीक है, और ये क्या दिया है, ओनली 10% एनर्जी अवेलेबल एज अ फूड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल, यानी ये दोनों सही है, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ये क्या दिया, एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स इज मैक्सिमम इन केस ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट हायर ट्रॉपिक लेवल, ये भी मैंने बता दिया अच्छे से, इसको भी आप कर ले जाएंगे। ओजोन लेयर वाला ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और इसके बाद क्या बच गया, ऑटोट्रॉप्स और बायोडिग्रेडेबल, ये भी ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें है, ये जानना है, ये समझना है। अब इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर यानी अगले वीडियो लेक्चर में मैं फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन आपको ले चलूँगा। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन, ठीक है। इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आई विल डिस्क्राइब द फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन थॉरली इन डिटेल, ठीक है। इन दिस वीडियो लेक्चर यू हैव लर्न द little more true false type question and the assertion and region type question, which is very important and higher to understand. So in next video lecture I will you will learn the fill in the blanks type question from our environment topic. Thank you.